Hello everyone, this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, and it is recognized by MSME and ISO certified, IVAF recognized, AAA recognized from USA. And this is Renu Mangtani. I'm an IIBF certified digital banker, youth icon by Honorable Governor of Maharashtra, and much more. And talking about my husband, he's an expert master numerologist, founder and CEO of Ankakshar Miracles. And to know more about us, you can Google us. Our YouTube channel page name and Facebook page name is also Ankakshar Miracles. Also, our Instagram IDs are truth_of_life82 and Abhishek Chitransh. And today we have Kala Malpani ma'am as a guest on the show on our beautiful podcast, which is basically of an anthology, 108 co-authors, and the books name are My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And she is one amongst the 108 co-authors. Hello, Kala ma'am, how are you doing today? Good. Thank you so much. So let's begin this beautiful podcast with the blessings of God. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So let's say have some introduction, short introduction about Kala ma'am, and I'm starting the screen sharing. Let me know, ma'am, that are you able to see my screen sharing? Yes, yes. So, talking about ma'am, she's a graphologist, graphotherapist, signature designer, numerologist, logo designer, homemaker. एंड ये एक कोट हमने मैम के आर्टिकल से पुल आउट किया है विच इज मैरिज इज नॉट जस्ट अ फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल वन. And now I'll be sharing the book covers with you all. Just give me 1 minute. Just a minute. This is the beautiful book cover of My Marriage Bliss versus Curse, which is an anthology of 108 co-authors, and both the books are available on Amazon and Flipkart. And this is the beautiful cover, Seven Lee of Life, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries. And talking about Kala ma'am, she has been she has received multiple awards. And talking about her, she's a two-time award winner of prestigious Ambassador Award of Mumbai Graphologist Society 2022 and 23, and she also held the various positions in Lions Club and community mandals, progressing from the grassroots to top leadership roles. She has climbed the ladder of success, taking on increasingly challenging responsibilities. Also, she has received the Best President Award from the Lioness Club of Lokhandwala, year 2005. So and she is grateful for the opportunities that she has that she has got, and like giving back to the society is what she loves. And over to you, Kala ma'am. Just introduce more about yourself, which I have missed out. So you have missed out one thing that Okay. now I have become an author also. So that is missing in Yes, my and certified published co-author. Ma'am, right now, ma'am is also a co-author as she has written a book, written her articles in these books. So that's actually a जहाँ पर आप एक ऑथर बन गए तो आप सोसाइटी को बहुत कुछ ऑलरेडी दे रहे हो. ऑलरेडी आपने जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया तो जो भी रीड करेगा डेफिनेटली आपके आर्टिकल से कुछ ना कुछ सीखेगा. तो और आपका टाइटल है बैलेंसिंग ड्युअलिटीज इन मैरिज इज द टाइटल ऑफ योर आर्टिकल. So can you please explain in detail to our audience? yes. Actually, this title is not only appropriate for this topic. Balancing, I feel everywhere it is needed, and especially doing being a graphologist and working on human thoughts. मेरा ऑब्जर्वेशन है एंड मेरा बिलीफ भी हो गया अब तो कि देयर शुड बी बैलेंस इन एवरी थॉट. तो जैसे अब वेदर इट इज गुड और बैड, लाइक टू लव योर चाइल्ड इज अ गुड इमोशन, राइट? बट if it is in excess, not in balance, again you face the repercussions of this emotion uh,
आउटर वर्ल्ड में तो होता ही है, बट इंटरनली यू फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. सो लाइक किसी बच्चे को प्यार ना करना नुकसान होता है, मालूम है. माँ का प्यार अगर बच्चे को नहीं मिला, ये नुकसानदायक है. बट माँ का प्यार अगर ज्यादा मिला तो भी नुकसानदायक है, ये समझ लो आज, है ना. यानी एंड कि इवन हर एक चीज में जो है बैलेंस होना चाहिए. यस. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यस. द टाइटल ऑफ योर आर्टिकल. यस. More of it in husband wife relationship also, we call it giving space. So again there is balancing. And in your body also, if like if every organ is in balance, isn't it? जैसे ही बैलेंस नहीं होता है, यू गेट एलिमेंट्स. लाइक अगर आपका हार्ट बैलेंस में है, काम कर रहा है, तो ठीक है. अगर वो बैलेंस गड़बड़ हुई तो आइदर यू गेट हाई बीपी और लो बीपी. सिमिलरली ब्रीदिंग, जैसे आपकी ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी चल रही है, बट जब सुषुम्ना नाड़ी पे चलती है तब ब्रीदिंग बैलेंस में होती है, एंड तब बहुत कुछ घटित होता है लाइफ में. तो आई फील दिस फिनोमिनन इन नेचर में भी यही फिनोमिनन चल रहा है, एंड वी एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस. दैट इज व्हाट माय मैसेज फ्रॉम दिस बुक. दैट्स ग्रेट मैम. एंड एक बहुत ही कहते हैं ना, यूर अ होम मेकर विद द एरिया विच इज क्लोज टू योर हार्ट. What would you like to say to the ladies out here who are homemakers like you, and also the professionals giving back to the society with what best they can give? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहा क्योंकि होम मेकर्स जो है ना, वो खुद को बहुत कम समझते हैं कि हम लाइक घर ही संभाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा. तो ये नहीं होना चाहिए. तो आप एक होम मेकर है, साथ ही साथ आप प्रोफेशनल भी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग ऐसा सोचते हैं खुद को कम? यस. देखो, मैं जैसा मैंने बोला, मैं बैलेंस में बिलीव करती हूँ. तो आई बैलेंस बिटवीन माय होम एंड माय प्रोफेशन. तो मैं प्रोफेशनली उस हिसाब से ही मैं अपना बैलेंस करके चलती हूँ कि मुझे दोनों जगह मेरे को डिस्टर्ब ना हो. पहली बात. दूसरी बात, टू द होम मेकर्स माई मैसेज इज कि व्हाट हैपेंस, जैसा आपने बोला कि होम मेकर्स अपने आप को थोड़ा कम तर समझते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. बल्कि दे हैव सो मच ऑफ पावर इन देयर हैंड्स एंड दे आर नॉट यूजिंग इट. मैं देखती हूँ मेरे आजू बाजू में कि पीपल कीप, लेडीज डोंट प्रेफर कुकिंग बाय देयर ओन, राइट. क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे विल हायर अ कुक. So they have time or whatever it is. Their interest is not in cooking. कि वो एक थोड़ा सा कमतर काम लगता होगा, whatever it is. तो and I prefer to make my cooking by my own, because there are two reasons. एक तो on the table you are serving two most essential things. One is good nutrition, wholesome nutrition, and the other is the positivity, the positive energy you are serving on the table to your family, which will give you the wholesome, uh, I mean, growth of your न्यूट्रिशन डाइट ऑल्सो. न्यूट्रिशन तो है ही है, प्लस ओवरऑल मेंटल हेल्थ ऑल्सो गेट्स इफेक्टेड. देखो ये और वो माइक्रो. बाहर का खाना, जितना बाहर का खाना भी ऑर्डर करो या जो भी करो, तो वो दैट इज बेसिकली कम्स अंडर जंक. उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती है, बट घर का एक जो खाना होता है दैट इज ऑफ कोर्स वो तो बहुत सही ही होगा. देखो न्यूट्रिशन तो है ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. जब हम खाना बनाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू देख के बनाते हैं एवरीथिंग. बट ऑन द माइक्रो लेवल, जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में खाना बनाते हैं और ये सोच के बनाते हैं कि मेरी फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो थॉट इम्बाइब जो होता है उसमें, दैट ऑल्सो गिव्स इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट. एग्जैक्टली, तो रादर देन वो कुक करेगा तो वो उसके कैसे थॉट्स होंगे, क्या होगा उस टाइम पे, वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं उस पर कोई कमेंट. एग्जैक्टली राइट. So, since you are a graphologist, what piece of advice you would like to share for our generations out here? क्योंकि आपने इतनी सारी generations देखी हैं अब तक, आपकी मैरिड लाइफ को भी काफी टाइम हो गया है, तो सारी पीढ़ियों के लिए क्या एडवाइस रहेगा? देखो आजकल इन दिस डिजिटल एरा, राइटिंग हैज बिकम वेरी लेस.
तो और व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट, you are putting your emotions on the paper. So that is very essential nowadays, especially इस डिजिटल एरा में ना, पीपल आर बिकमिंग मोर रोबोटिक, इमोशंस कम होते जा रहे हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल। बोलते हैं भाई प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, सब बात ठीक है, बट विदाउट इमोशंस वो प्रैक्टिकलिटी नहीं काम की है। तो अगेन द बैलेंसिंग फैक्टर हियर। तो एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि अगर एक तो डेली लिखना हैबिट में हो तो इट इज गुड, एंड इफ इट इज लर्निंग ग्राफोलॉजी, तो क्या होता है, योर स्ट्रोक्स आर प्रॉपर, देन यू गेट द डबल बेनिफिट, बोनस भी मिलता है साथ में। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट नो, यू आपका आर हर जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। आपका हर स्ट्रोक कुछ बोलता है। थोड़ा सा स्ट्रोक में इधर और उधर करने से जो चेंजेस लाइफ में आते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए अगर थॉटफुली आप लिखो तो और अच्छी बात है, बट राइटिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली और जैसे आपने बताया कि टोटली रोबोटिक हो गया है, तो वही है कि ऑल टाइम आजकल तो मोबाइल एडिक्शन भी इतना ज्यादा हो गया है। एंड वही, आप ब्यूटीफुल सी बुक तो हम पीछे देख ही पा रहे हैं, आपने माय मैरिज की रखी हुई है, ब्लिस वर्सेस कर्स, एंड मोबाइल एडिक्शन भी हमने आपको सेंड की है। तो वही उस किताब में भी हमने यही सारी चीजें मेंशन की है कि किस तरीके से लोग जो है एकदम टोटली, मतलब कहते हैं ना, डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गए मोबाइल के ऊपर। ऐसे नहीं कि कुछ हम अपना कहते हैं कि अपने कुछ थॉट्स लगाएं और अपना कुछ करें, नो, जो भी है कि गूगल में सर्च कर लो, गूगल में सर्च करो। इट शुडंट बी लाइक दैट, यू शुड ऑल्सो पुट योर ओन थॉट्स, वर्क अपॉन इट, ऐसा होना चाहिए। सो मूविंग ऑन मैम, आपने 7 ली ऑफ लाइफ के आर्टिकल में जो मेंशन किया है लर्निंग में, स्पेशली ली इज लर्निंग, अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन। तो लर्निंग जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे लाइन एकदम इतनी अच्छी लगी, और आजकल इस लाइन की जरूरत भी है। When I become desperate, the manifestation process slows down. And then you have shown the approach to universe. So आप कुछ रियल एग्जाम्पल बताएं मेरे ऑडियंस को कि समझ पाए, क्योंकि करंट सिनेरियो यही हो गया है। सारे लोग जो है ना, हर एक चीज को लेकर डेस्परेट हो गए हैं कि ये मेरा काम इतना जल्दी हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इससे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इस अप्रोच को आपने यूनिवर्स से कनेक्ट करके बताया, तो आप बताएं मैम इस बारे में कुछ। एक्चुअली बीच में थोड़ा मेरा साउंड का कुछ इशू आ गया था, आई कुड नॉट हियर योर वॉइस प्रॉपरली, इट वॉज वेरी लेस, सो नाउ आई हैव सॉर्टेड माई साउंड प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम, आई रिपीट द क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। 7 ली ऑफ लाइफ आर्टिकल है आपका, उसमें आपने लर्निंग पॉइंट में जो है मेंशन किया है, व्हेन आई बिकम डेस्परेट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्लोज डाउन, एंड देन यू हैव शोन द अप्रोच टू यूनिवर्स। सो कैन यू गिव सम रियल एग्जांपल फॉर दिस सिचुएशन टू अवर ऑडियंस टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज इट इज मच नीडेड एज पर द करंट सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सारे लोग बहुत डेस्परेट होते हैं कि अभी हमारा काम इतनी जल्दी हो जाए या इतनी जल्दी हो जाए। सबर जो है ना, वो बिल्कुल पेशेंस खत्म हो चुका है। तो इस हिसाब से आप कुछ रियल एग्जांपल को जोड़ के इसे एक्सप्लेन करें ना। एक्चुअली क्या, टू बिकम डेस्परेट, आप जब डेस्परेट होते हो ना, तो माय वॉइस इज क्लियर? यस यस, एग्जैक्टली क्लियर। ओके। So when you are desperate, you are more focused on the end result, तो आप desperate हो जाते हो, एंड तभी आपकी वर्क क्वालिटी पे आपका ध्यान कम होता है। जैसा मैं यहाँ गीता का एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई ऑलवेज यूज इन माई लाइफ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि क्या होता है, एंड रिजल्ट पे आप अगर ज्यादा कंसंट्रेट करते हो तो आपका जो फोकस अभी होना चाहिए, वो क्वालिटी वर्क आप दे नहीं पाते हो। तो डेफिनेटली जब आप क्वालिटी वर्क नहीं दे पाओगे तो आपका एंड रिजल्ट भी इफेक्टेड होगा। एंड अगर उसकी जगह हम एंड रिजल्ट की तरफ अगर ध्यान ना दें और हम क्वालिटी एफर्ट डालें, तो डेफिनेटली जब क्वालिटी एफर्ट होगा तो रिजल्ट ऑलवेज गुड ही होगा। तो मेरा मानना है कि भाई बहुत डिस्परेट जब हम होते हैं एंड रिजल्ट के लिए, तब कहीं ना कहीं हमारा वर्क क्वालिटी डाउन हो जाता है, बिकॉज फोकस डेविएट हो जाता है। तो एंड आई हैव सीन कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार मैंने ये देखा है। तो मेरी ये लर्निंग है कि भाई नॉट टू बी फोकस्ड ऑन द एंड रिजल्ट।
not to become जस्ट desperate. बिलीव इन द यूनिवर्स, बिकॉज जो भी डेस्टिनी में लिखा है वैसे ही होगा और बेस्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे आपके आपके आर्टिकल से मुझे पर्सनली तो ये सीखने मिला, और आज हमने ऑडियंस के साथ भी शेयर कर दिया कि जस्ट डोंट बिकम डेस्परेट, go with the flow, believe in universe, whatever happens is already for the good, just वो जब आपने बिलीव कर लिया तो डेफिनेटली सब कुछ गुड ही होगा। सो मैम, क्या फीलिंग रही जब आपको ये बुक्स और आपके पर्सनलाइज गुडीज आपको मिले थे, वो उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? देखो, मैं अपने बचपन में चली गई, लाइक व्हेन इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू गेट एनी गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट, तो जो खुशी होती है, जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, वो मुझे इस बुक से मिली। एंड एक बात और बताऊं कि आफ्टर दिस बुक केम एंड माय हस्बैंड रेड माय आर्टिकल, ओके, तो दूसरों को बेनिफिट होगा या नहीं आई डोंट नो, बट मुझे ऑलरेडी इस बुक का बेनिफिट मिल गया। लाइक the moment I got this topic, I dived into this subject and I got, मतलब ये जो नॉलेज है इसको मैंने इकट्ठा किया, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला ही मिला। एंड व्हेन माय हस्बैंड गॉट टू नो अबाउट माय थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई इससे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है बेटर, क्योंकि ये एक टॉपिक भी ऐसा है कि जो कोई बात ही नहीं करना चाहता है इस टॉपिक पे ऊपर। तो इसीलिए ये टॉपिक जब सब लोगों ने लिखा तो देवर लाइक आपके जैसे, उन्होंने ही बताया कि हमने अपने मैरिज ईयर्स को, ओल्ड अपने सारी चीजों को रिमेम्बर किया, उसके बाद हम अपने थॉट्स को पुटअप किया। सो दैट्स रियली ग्रेट मैम। और आप अंकाक्षर मिराकल्स को कैसे मतलब रेकमेंड करना चाहेंगे, और आपकी जर्नी कैसे रही हमारे साथ, और न्यू कमर्स को, न्यू ऑथर्स को क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगी मैम आप? I will suggest Ankakshar Miracle is a very good platform for the aspiring authors, because क्या होता है ना, एक तो हम टॉपिक, खाली हमको टॉपिक के ऊपर काम करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द पब्लिशिंग हेडेक दिस दैट एवरीथिंग यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ। तो हम स्ट्रेस फ्री होके हमारे राइटअप पे कंसंट्रेट कर पाते हैं इससे, एंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग ऑन द प्लेटर, रेडी ऑन द प्लेटर। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली। Thanks, ma'am. Thanks for all the love and respect, and thanks for coming. Thanks for joining. This was Renu Mangtani with Kala Malpani. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। जल्दी मिलेंगे हम अगली को ऑथर के साथ। थैंक यू मैम। थैंक थैंक